বিজয় ধন্যবাদ যে উনি এমন একটা সুন্দর আয়োজন করেছেন। আয়োজন তো সব জায়গায় হচ্ছে, কিন্তু বাংলার বাইরে একটা দিনাজপুরের মতো জায়গায় যেখানে মাতৃভাষা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, এখানে স্বাধীনতা উদযাপন মাতৃভাষা করা একটা অভিনব প্রয়াস, এবং এর জন্যে নিত্যানন্দ মণ্ডল তো লেগেই আছে, কিন্তু বিজয় সিংজি আসাতে এই অভিযান আরও খুব সঠিক দিশায় যাচ্ছে, এই জন্য ধন্যবাদ। आज एक प्रयास के तहत, एक भाषा के उत्थान के प्रयास के तहत हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया। उद्देश्य था कि समाज में किसी भी संस्कृति का लुप्त होना सबसे दुखद होता है, और उसका उत्थान, उसकी शुरुआत, उसका जो है प्रचार प्रसार भाषा से ही होता है। बांग्ला संस्कृति जो अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति है, उसके उत्थान के लिए हम लगातार ये सोच रहे थे कि जो चीज़ें खत्म हो रही हैं, जैसे यात्रा गान यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आजकल जो भी आपके दुर्गा पूजा के कार्यक्रम होते हैं, कहीं यात्रा देखने को नहीं मिलता, वही रिकॉर्डिंग डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं। इसी के तहत हमने शुरुआत की है कि बंगाली कल्चर जो मूल कल्चर है उसको स्टैब्लिश किया जाए, उसके बढ़ाया जाए, और उसी के तहत एक पहला प्रयास, फर्स्ट स्टेप है हमारी कोशिश है कि बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें हम भाषा को रोकें। भाषा बोलते सब हैं, लेकिन लिखना और पढ़ना अपने आप में महत्वपूर्ण काम है। इसी के तहत हम लोगों ने ये आयोजन किया था, और इस आयोजन में उपस्थित हमारे आदरणीय पराश बाबू जी, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम उनका जो है शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने बच्चों के इस कार्यक्रम में प्रोत्साहन के लिए अपना समय दिया। साथ में ही हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री असित मंडल जी पहुँचे हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। हमारे बीच कालीपत जी पहुँचे हैं दीप दर्शन न्यूज़ से, और प्रकाश तिवारी जी पहुँचे हैं, पत्रकार हैं, फ्रीलांसर हैं दस्तक प्रकाश से। उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया। साथ ही साथ उन बच्चों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रयोजन को तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वीकार किया और उसमें लगातार प्रयास करते हैं। हम आशा करते हैं आप इसी तरह से अग्रसर होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सारे बात जोर से नारा लगाएंगे, প্রথমবার মঞ্চে উঠলে সবারই পা কাঁপে, কথা বলতে পারে না। আমরা যখন ছোট ছিলাম না, তখন আমাদের বাড়িতে জোরে জোরে পড়তে বলা হতো, সেই কবিতা বলো, খবরের কাগজ বলো, বই বলো, এই জন্যে যে কোথাও কথা বলতে আটকায় না, যে দ্বিধা, আত্মবিশ্বাস, এর জন্য এটা খুব প্রয়োজন। এই জন্য জোরে জোরে পড়া খুব দরকার। তোমরা খুব ভালো প্রোগ্রাম করেছো। আমাদের গ্রামের বাচ্চারা অনেকদিন থেকেই পড়ছে, তো খুবই ভালো, কিন্তু আরো ভালো করতে হবে। তাছাড়া এই কবিতা পাঠ যেটা হচ্ছে বাংলায়, এটা গানের মতোই একটা আলাদা শিল্প। এতে যেরকম অভিনয় করে মানুষ, যেরকম নৃত্য করে, যে মুদ্রা থাকে, ভাব ভঙ্গিমা থাকে, সেইগুলো এটা আস্তে আস্তে আয়ত্ত করতে হবে। একটা কথা আমি বলতে চাই তোমাদের, ভাষা, সব ভাষাই মাতৃভাষা, আর আজকের যুগে সব ভাষা শেখা খুব প্রয়োজন। দুটো, তিনটে, চারটে ভাষাতে কাজ হয় না। আজকালকার যুগে গ্লোবালাইজেশন ছিল তো, মানে বৈশ্বিকরণ, সারা পৃথিবীর সব জায়গায় এখন কর্পোরেট এইসব মাল্টিলিঙ্গুয়াল হওয়া দরকার। তোমরা হিন্দি, ইংলিশ, সংস্কৃত শেখো, কিন্তু বাংলা মাতৃভাষা, বাংলা শেখা খুব ভালো। বাংলা বা পাঞ্জাবি যেটা তোমরা জানতে পারো, 5-6টা ল্যাঙ্গুয়েজ শেখো, এবং বাড়িতে গার্জেনদেরও বলো যে মাতৃভাষা শিখে আমাদের কেরিয়ারের উন্নতি হবে। মাতৃভাষা আমাদের জন্য শেখা অত্যন্ত দরকার, এবং সময় দিতে হবে। আর নিজেরা যে কথাবার্তা বলো, বেশিরভাগ আমরা হিন্দিতে কথাবার্তা বলি, কিন্তু হিন্দিতেও বলবে, আমিও তো হিন্দিতে বলি, কিন্তু বাংলাতেও বলি, আবার প্রয়োজন হলে ইংলিশেও বলি। তো যারা ইংলিশ মিডিয়ামে, তারা ইংলিশ মিডিয়ামে বলবে, হিন্দিতেও বলবে, বাংলাতেও, সব ভাষাতেই কথা বলার অভ্যাস আয়ত্ত করা উচিত।
আজকে একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম, আগামীবার এর থেকে অনেক বড় অনেক ভালো প্রোগ্রাম করবে এবং তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে চলে আসবে। প্রস্তুতি করার দরকার। প্রস্তুতি মানে প্রোগ্রামের আগের দিন একটু মুখস্থ করলাম তা না। প্রস্তুতি মানে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অভ্যাস করা, তাই তো? আমি যখন ছোট ছিলাম তখন যেখানেই মানে পুজো বা কোনো অনুষ্ঠান হতো সেখানে আমাকে মাইক ধরিয়ে দেওয়া হতো কথা বলার জন্য, বক্তৃতা করার জন্য। সেই জন্য আমার কলেজে কোনো অসুবিধা হয়নি, কারণ আমার বলার অভ্যাস ছিল। তোমাদের বলার অভ্যাস নেই, আত্মবিশ্বাস নেই, এটি একটা প্রবলেম। এটাকে ওভারকাম করতে হবে। আর নিষ্ঠা চাই, পড়াশুনো মন দিয়ে করবে, লিখে লিখে পড়বে। আর যেমন লিখে লিখে পড়ো অমনি জোরে জোরে সঠিক উচ্চারণের সঙ্গে আর সঠিক ভাবের সঙ্গে যে কবিতার যে ভাব বা যে পাঠ্য যেটা তোমরা পড়ছো তার যে ভাব, সেই অনুযায়ী ভাব ভঙ্গিমার সঙ্গে পড়ার অভ্যাস করবে, তোমাদের প্রোগ্রাম আরো ভালো হবে। ধন্যবাদ। কিরকম লাগছে? আমার এই এমএসকে একাডেমিতে এসে বাংলা প্রোগ্রামে মিলাডিক পোয়াম এসব শুনে ভালো লাগছে। আর এই জায়গাতে আমরা মিলাডিক প্রোগ্রাম করেছি, এই মিলাডিক বাচ্চারা ছিল এমএসকে কেউ বাসন্তীপুর গ্রামের এই জায়গার প্রিন্সিপাল বিজয় সিং আমাকে ডাকিল, তা আমরা এতে এসে প্রোগ্রামে হিস্সা নিলাম। आप विजय सिंह हैं और एमएसके एकेडमिक स्कूल जो है दिनेशपुर में है, तो विभिन्न समुदाय यहाँ के लोग रहते हैं। आपने बांग्ला भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए एक अभिनव पहल की है जो सराहनीय है। और आज यहाँ पर पूरे टोटल जो स्टेज प्रोग्राम यहाँ पर हुई है, पूरा बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर एक्टिविटीज़ को लेकर के यहाँ पर हुई है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं और इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में आपकी जो मुहिम है वो कहाँ तक आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारा दिनेशपुर जो है अपने आप में एक गुलदस्ता है। यहाँ पे कुमाऊनी, गढ़वाली, पुरविया, आपके बंगाली, तमाम भाषाओं के लोग यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं। बंगाली एक ऐसा समुदाय है, यहाँ पर बंगाली कम्युनिटी जो है यहाँ पर लंबे समय से है, जिन्होंने यहाँ पर इनको बसाया, इस क्षेत्र को जो है गुलजार किया। साथ ही साथ बंगाली कल्चर की एक अपनी लिपि भी है, जो कि किसी भी कल्चर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आ रही थी कि आज की तारीख में इस बढ़ते जो है टेक्नोलॉजी के युग में बच्चे इंग्लिश, हिंदी तो सीख रहे हैं, लेकिन अपनी मूल भाषा, मातृभाषा भूल रहे हैं। जो कि मैं हमेशा से, मेरा प्रयास ये रहता है कि हर बच्चा अपनी मातृभाषा, मूल भाषा से जुड़ा रहे। इसी के तहत हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है मैक्सिमम बच्चे बंगाली हैं, और वो हमने एक बंगाली लैंग्वेज को स्टार्ट किया जिससे कि जो है बच्चे इसको सीख सकें। और इसी के तहत हम लोगों ने एक प्रयास किया उन्हें स्टेज देने का, क्योंकि जो है जब बच्चा स्टेज पर आकर सीखेगा, बोलेगा, तो उससे इसमें बोलने में झिझक नहीं होगी, वो आगे बढ़कर काम करेगा। इसी के तहत हम लोगों ने प्रोग्राम का आयोजन किया था। बंगाली क्षेत्र है, बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर, और आपने यहाँ पर विधिवत जो है बांग्ला भाषा सिखाने के लिए व्यवस्था यहाँ पर की है, तो ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जिनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, उनके लिए क्या संदेश रहेगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि हर एक भाषा को प्रमोट करना चाहिए और हर एक को इस पर प्रयास करना चाहिए। ये एक यज्ञ है, इसमें अपनी तरफ से आहुति देनी चाहिए। मेरे यहाँ पर कुछ पहाड़ी कम्युनिटी के बच्चे भी हैं, सिख कम्युनिटी के बच्चे भी हैं, सब जो है जी जान से सीख रहे हैं, और जैसे ही हमें मौका मिलता है तो हम इनको जो है आगे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि एक कल्चर का प्रमोशन होना, और जितने भी स्कूल्स आपस में प्राइवेट स्कूल्स हैं, कि गवर्नमेंट के भरोसे हम नहीं टिके रह सकते, हमें अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए। अगर हम इसका महत्व महसूस करते हैं तो हमें अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए। और सभी से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो भी हो सके, किसी भी एक भाषा को, जो भी भाषा है उसको प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। जो भी आपके यहाँ संख्या, उसके आधार पर उन सबको जो है आगे प्रमोट करने की कोशिश करें, उसी कल्चर को, उसी लिपि को, उसी भाषा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। আচ্ছা, কতদিন থেকে বাংলা শিখছো? কিরকম লাগছে? ভালো লাগছে। আমরা স্টেজে প্রস্তুত করেছি, মেলা ভালো লাগছে। আর 2 বছরের ধরে পড়ছি, বহুত ভালো লাগছে। আচ্ছা।